member, IEEE, and presently professor at Sant Longwala Institute of Technology. A warm welcome, sir, with the folded hands. And then I will like to welcome our beloved students and alumni, our heartthrob, then their respected parents. Warm welcome, our prestigious participants. Greetings of today to all of you. Now, on this auspicious occasion of national webinar on the forms of education and placement in this COVID-19 pandemic era and after, I will warmly welcome and gracefully greet our esteemed, eminent, august personality in the academic and corporate field, offering our blooming boards and flowers of respect, honor for his sparing time to strengthen the future of our BITT Polytechnic in general and our students in particular. I feel really very proud and enchanted and rather say spellbound and overwhelmed in sharing this digital dice virtual but actual with this august personality, dazzling sun and bright moon in the sky of academics and corporate world and the sky. Our scholar Dr. Manpreet Singh Manna sir, for whom really I lack words of praise and admiration in real sense of the term. Sir is the embodiment of academic and corporate excellence ocean, and with BITT Polytechnic just a droplet of that ocean, a beginner, a little polytechnic, ignorant of ethics, etiquettes, culture and climate of corporate world, simply welcoming sir with our folded hands, but events. BITT Polytechnic is a very little institution, a starting institution in technical field, a polytechnic certainly, but with its world-class infrastructure and undaunted spirit and the capability and potential to change with time, we are moving forward with accelerated speed in these adverse circumstances of COVID-19 pandemic, when the whole world development wheel was compelled to rotate in reverse gear. We accelerated our development by shifting our mode from offline to online. That is very complete digitalization of our institution. In academics, we use WhatsApp groups for sharing knowledge and papers, Google Meet, TCS group services also taken, Microsoft Meet, and so others whatsoever are preferable and available are used by our faculty members and our students.
for the best benefit of the student and for the best welfare. In this pandemic era also, we conducted more than 100 national and international webinars, faculty development, student development programs, and social programs, and more than 10 memorandum of understanding with national and international institutions like IIT Kanpur and BHEL, SAIL, CIL, and so many others, not to name at this time. And we are making pace with all other ultra-modern institutions these days, and this reflected in the result and in placement also. 100% result, almost distinction, and 98% all-time record placement was achieved by the untiring effort of our extraordinary faculty, dedicated and determined for their definite success. So, what more, at this moment, I will take this opportunity to rather, bless my students, which I have got the authority, being the teacher and being the senior also. So I bless my students from this digital platform for the grand success in their life and in their future, in their career, with their own labor, intelligence, vigor, all moral and intellectual qualities, and following the vision of all visionaries, come out from the comfort zone and be comfortable with the changing scenario and the circumstances. Warm welcome, sir. This is now precious and blissful time for the esteemed eminent speaker, our proud keynote speaker, sir. Warm welcome for your delivering this precious and IEEE Delhi Section Photonic Society Chapter of Rajasthan. Sir is the member of many committees, many chapters, any organization. He is recognized in all over the world. Sir, he has been invited in more than 300 occasions, events as a chief guest, guest of honor, and keynote speaker of various prestigious conferences, FDPs, and webinars. He is also has a visiting faculty at Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, intergovernmental organization, which is debuted through Government of India, attending conferences around the globe. He has written many chapters on international standard books and edited one exclusive book, and he is entitled Higher Education Faculty Career Orientation and Advancement. So today on this national webinar on Campus to Cooperate on education reform and placement during COVID pandemic, I will like to invite our chief guest, sir, please, and address this webinar. So, sir, please come. देखिए
Hello, sir. Sir, voice is not coming, sir. It is not audible, sir. Please unmute your mic. I have unmuted. My The voice is too low. my voice is not coming. It's coming, but it's too low. Volume is very. So I am speaking on my highest mode. This phone is having echo. So I don't know how to manage then. We have to manage with this kind of like otherwise I have to switch over to my mobile. फिर मैं आपको presentation नहीं दिखा पाऊंगा. मैनेज कर सकते हैं आप इस अपनी बात से? The speaker is not clear, sir. अपना आवाज आ रहा है। So shall I continue with this voice? Yes, sir. Yes, sir. Sir, the voice is not clear, sir. Okay, it's Sir, a better. now this time your voice is clear. Thank you very much. Dear students, I am here today to interact. मानिए कि जब वो अभी आपके ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर सर मेरे बारे में कुछ बोल रहे थे, मुझे भी नींद आने लगी थी, आपको भी आई होगी। नींद आ जाती है, स्वाभाविक है, दोपहर का टाइम खाना खाया है और अब आपको सिर्फ बीच में म्यूट रहना है। मैं आपकी भावनाएं बिना आपके बोले समझ पा रहा हूँ क्योंकि आप अपनी भावनाएं चैट बॉक्स पे भी बहुत अच्छे से बता रहे हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑर्गेनाइजर से कि चैट बॉक्स पे भी जो कुछ लिख रहे हैं ना, आप किसी को रिमूव मत कीजिए, सब कुछ आने दीजिए सामने, क्योंकि अगर आज मैं फीडबैक नहीं लूंगा तो कल मैं कैसे अपने आप को ठीक कर पाऊंगा। अगर कोई जेठालाल बन के आया तो उसको जेठालाल बन के आने दीजिए, बच्चे हैं, नटखट हैं, करेंगे ऐसी शरारतें, उसको म्यूट मत कीजिए। फर्क ये है कि क्या हमने जब कभी कोई सेशन रखा उससे पहले ओरिएंटेशन की हुई है। ये हमारे बच्चे हैं, दे आर अवर डीएनए, दे आर नॉट एलियंस, ये किसी दूसरी दिशा से, दूसरी दुनिया से नहीं आए हुए हैं। आज जब आपके बीच में कोई अतिथि आया हुआ है तो क्या हमने भारतीय संस्कृति बता रखी है, अतिथि देवो भव? अगर बताई होती तो चैट बॉक्स पे आ जाता, वेलकम सर, वेलकम टू अवर इंस्टीट्यूशन बीआईटीटी पॉलिटेक्निक। और हमें बहुत अच्छा लगता है आपको सुन के, या अच्छा लगेगा आपको सुन के, आप हमारे बीच में आए, आपने समय निकाला। तो डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल मत सोचना कि मैं आपको सुलाने के लिए आया हूँ। मैं आपसे 40 मिनट बात करूं, 50 मिनट बात करूं, सिर्फ आप ही की बात करने आया हूँ, कोई किताबी बात नहीं करने आया हूँ। ना मैं साइंस पढ़ाने वाला हूँ, या फिर ना मैं मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ। मैंने कोई किताबी बातें नहीं करनी है। तकरीबन ये आते हैं, ताली बजाते हैं, बड़ी बड़ी अंग्रेजी में बातें करने के बाद अंग्रेजी भी नहीं बोलनी आ रही, तो भैया तो हिंदी में बात कर लेंगे ना। तो आप टीपीसी सर को भी कह रहे हो इंग्लिश सीख लो, तो मैंने जो लगा मैं तो 10वीं पास हूँ भैया, मैं तो बिल्कुल पंगा ना लूं। तो आई वाज प्लानिंग टू स्पीक समथिंग इन इंग्लिश बट आई थॉट बेटर टू बी इन हिंदी। तो मेरे लिए भी कुछ ऐसे कुछ ना कुछ लिख देंगे चैट बॉक्स में, तो भैया क्यों रिस्क लेना है। तो एनी हाउ एंजॉय कीजिए मेरी टॉक को, आराम से बैठिए, 40 मिनट रिलैक्स होकर बैठ जाइए। अभी आज से जो मैं बात करने जा रहा हूँ ना, तो आज अगर समझ नहीं आएगी ना तो कल, तो तब आप मुझे याद करके गूगल पे ढूंढेंगे, लिखेंगे वहां पे गूगल पे मनप्रीत सिंह मन्ना। अगर बीच में टाइम हो, अगर आपके पास मोबाइल हो या एक्स्ट्रा कोई कनेक्शन का सुविधा हो अदर देन दिस, ये ऑर्डर पहले इस्तेमाल पता चलेगा। पहले प्रोडक्ट ले ही लेंगे तो उसके बाद तो उसका घड़ी कंपनी का तो फायदा हो ही जाएगा ना। हाँ, ये देखिए बीच में आपको म्यूट रखना पड़ेगा, अगर आप ऐसे अनम्यूट करके बीच में बोलेंगे तो दिक्कत आ जाएगी, मुझे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। सो चैट बॉक्स में बोलो भाई। ऋषिराज जी कृपया म्यूट रखें, अपनी भावनाओं को संभाल के रखें, पहले मुझे सुन तो ले भैया। आज हम आपके बीच में बात करने आए हैं, पहले हम अपनी बात तो रखें, आप अपने आप को म्यूट रखें और सिर्फ सुने। और उसके बाद जब मेरी टॉक खत्म हो जाए, चैट बॉक्स पे जाके सब कुछ लिखिए, फीडबैक लिखिए, आपको इस टॉक के बारे में क्या लगा, कैसे लगा। आई वॉन्ट अ ट्रू फीडबैक बिकॉज आई एम नॉट योर कॉलेज टीचर, मैंने तो आपके मार्क्स ना घटाने हैं ना बढ़ाने हैं। आई एम नॉट योर अथॉरिटी, मैंने आपको डिग्री भी नहीं देना, डिप्लोमा भी नहीं देना। तो मैं तो एक देश का टीचर हूँ, आपके बीच में आया हूँ। मेरे बायोडाटा में मुझे प्रेसिडेंट अवार्ड मिला, मैं डायरेक्टर एआईसीटी रहा, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कहोगे सर अगर हमें कुछ आपसे बेनिफिट मिला तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका बायोडाटा आपके काम का है, हमारे किस काम का है। दिस इज द फैक्ट। तो हम सिर्फ फैक्ट पे बात करेंगे। आज चर्चा किस पे करनी है? मुझे बोला गया है कि कॉलेज टू कॉर्पोरेट जाने की बात कर रहे हैं, C2C। मैंने आपकी मेल देखी, मुझे इन्वाइट किया गया, मैंने कहा कॉर्पोरेट जाने की बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट जाने के बीच का जो रास्ता है, जो जर्नी है, उसको कैसे तय करना है, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपके लिए छोटी सी प्रेजेंटेशन भी साथ में बना के रखी है और मैं वो अभी
प्रेजेंटेशन आपके सामने रखने वाला हूं। आप उसको देखिए, मुझे सुनिए, मेरे साथ चलने की कोशिश कीजिए। हम कहीं ना कहीं इस रास्ते पे आगे जा पाएंगे, हम कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। सो उद्यमिता और स्टार्टअप, आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम। मैं ऐसा मानता हूं, हमारे देश में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और पॉलिटेक्निक कॉलेजेस भी हैं, और सारे कॉलेजेस अपना अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं। जब भी आपके कॉलेज की ऑर्गेनाइजर ने भी उन्होंने इन सुविधाओं के बारे में, चीजों के बारे में, मैं थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग पे विश्वास करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि मैं अपने कॉलेज के बारे में कुछ बताऊं, इससे पहले बाहर वाला मेरे कॉलेज के बारे में कुछ बताऊं। बाहर वाला कौन? एल्यूमनाई, पेरेंट, एम्प्लॉयर, जहां पर मेरा बच्चा जाकर कार्य कर पा रहा है। अगर वहां से हमें फीडबैक आती है तो हम कहते हैं आउटकम बेस्ड एजुकेशन हो रही है। आपके इंस्टीट्यूशन की तरफ से मुझे निमंत्रण आया, मैंने यस कर दी, क्योंकि इसका मतलब मुझे कॉलेज की कुछ जानकारी रही थी, तो मैं बाहर से हूं ना। सो इफ आई कैन ट्रस्ट योर कॉलेज, इट मींस आई ट्रस्ट योर स्टूडेंट्स, आई ट्रस्ट योर फैकल्टी, आई ट्रस्ट योर मैनेजमेंट। मुझे पता था कि जिन से मिलने जा रहा हूँ वो मेरे देश के बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो एक चीज चाहते हैं कि सर हमें एक तो सच बताएं और एक हमें बताएं कि आगे करना क्या है। ये तो हम कर ही रहे हैं, जहां आपने हमें एडमिशन दिया है, आपके कहने पर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे कहाँ? इसी बेस पर देखिए, हमारी देश विदेश की सारी जो सुविधाएं हैं, हमने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में बांधी है। आपको पता है एक सबसे बड़ी बॉडी है यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। यूएनओ ने एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है 2030, यानी कि 2030 तक ये प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? ये 17 गोल हैं। यानी कि इंस्टीट्यूट का अपना एक गोल होता है, यूनिवर्सिटी का अपना एक गोल होता है, देश का अपना एक गोल होता है। ये पूरे सारे 182 देशों के गोल्स हैं जो सबको अचीव करने हैं, जिसमें लाइफ ऑन लैंड, लाइफ बिलो वाटर, क्लाइमेट एक्शन, और इस पे चौथा गोल है क्वालिटी एजुकेशन। मैं क्यों आपको ये सामने रख रहा हूँ बात? भारतवर्ष पे इस गोल के ऊपर कोई टिप्पणी करने के लिए यूएनओ में जब बुलाया जाता है तो मैं भारत की तरफ से वहां पर रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मुझे यूएनओ का मेंबर बनाया गया SDG 4। अब वहां पे बातें क्या होती हैं? आज सारी बातें करेंगे ना, वहां जाके बातें क्या होती है? हम बातें ये करते हैं, हम बच्चों को डिप्लोमा करवा रहे हैं। हाँ सर, डिप्लोमा करवा रहे हैं। मैट्रिक के बाद, जी मैट्रिक के बाद फिर बच्चे ने क्या किया? पर वो एक ही दौड़ में भागा। कौन सी दौड़? मेरा डिग्री में एडमिशन होगा कि नहीं होगा, मुझे सेकंड ईयर में एडमिशन डिग्री में चाहिए, मुझे लीड का एग्जाम देना होगा। तो लीड का एग्जाम ही देना था, इंजीनियरिंग ही करनी थी, तो फिर डिप्लोमा में क्यों गया? नहीं सर नहीं, 10+1 +2 तो बहुत टफ थी, देयर वाज अ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स व्हिच वाज वेरी टफ, आई टुक डिप्लोमा आफ्टर मैट्रिक। व्हेन यू टुक डिप्लोमा, इट मींस यू वांट्स टू एनहांस योर स्किल्स। डिप्लोमा इज मेंट फॉर स्किल्स, डिग्री इज मेंट फॉर इंजीनियरिंग। कभी भी एक चीज मैं आपको यहाँ से इस मंच से बताना चाह रहा हूँ, मैं आज भी आपको एग्जांपल्स चाहिए, मैं दे सकता हूँ एग्जांपल। इस देश का डिप्लोमा होल्डर, बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा होल्डर हैं जिन्होंने सिर्फ डिप्लोमा किया है और IITian पास आउट से भी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। यस, इट इज रिकॉर्ड, IITian पास आउट। क्यों? स्किल्स। यहाँ पर बात होती है लर्निंग टूल्स की। जब तक आप देश के किसी कॉलेज से भी पढ़ लो, आप BITT से पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, आप इससे ऊपर के किसी कॉलेज से पढ़ना चाहते हैं, NIT से जाके पढ़ो, आप IIT में पढ़ना चाहते हैं पढ़ो। अगर IIT में पढ़ने के बावजूद भी अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है ना, यू डू नॉट हैव द स्किल्स। स्किल्स आर डिफरेंट टाइप्स, अभी डिस्कस करेंगे, सुनते जाएंगे। नोट यू आर गिविंग योर रिफ्लेक्शन। अगर हम जब कोई बात रखते हैं ना किसी के सामने, तो हम क्या बताते हैं? अपने अंदर की भावनाएं बताते हैं। मैं आपके सामने लेक्चर दे रहा हूँ तो क्या बता रहा हूँ? अपने अंदर की भावनाएं। अगर आप किसी के बारे में कुछ लिखेंगे ना, जेठालाल दया का क्या हाल है, तो आप अपनी भावनाएं बता रहे हैं कि आज आप यहाँ सीखने के मोटिव से नहीं आए हैं, आप आपस में मजाक करने के मोटिव से आए हैं। मजाक करने के लिए कैफेटेरिया होता है, कैंटीन होती है, आपका फ्री टाइम होता है जब आप चैट करते हो दोस्तों के साथ। ये तो एक सेशन हो रहा है, यहाँ पे आप सबको संवैधानिक रूप से स्वतंत्रता दी थी। चैट बॉक्स पे कोई सवाल पूछिए अपने टीचर से, अपने आने वाले स्पीकर से। लेकिन ये भी अच्छी बात है, नटखटता भी होनी चाहिए। मैंने कॉपीराइट करवाया एक क्वेश्चन, आपको पता है 4 क्वेश्चन होते हैं। फिजिकल क्वेश्चन, स्पिरिचुअल क्वेश्चन, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, जिसको आप IQ के नाम से जानते हैं, एक होता है इमोशन क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चंस को बताया गया कि जिसके पास ये 4 क्वेश्चंस अच्छे से होते हैं ना, वो बड़ा सक्सेसफुल पर्सन होता है। मैंने एक नया क्वेश्चन कॉपीराइट कराया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। यू नो दैट व्हाट इज दैट?
नोटीनेस क्वेश्चन, एनक्यू। ये एनक्यू क्यों करवाया? मेरा मानना है जब तक आपके अंदर बचपना जिंदा है, आप फ्रेश हैं, आप एनर्जेटिक है, आप कुछ भी इनोवेशन कर सकते हैं, आप कभी जिंदगी में बूढ़े नहीं होंगे। जिस दिन आपके अंदर का बचपना खत्म हो जाएगा, नटखटता जिसको कहते हैं, उस दिन आप चाहे 18 साल के तो भी बूढ़े हो जाएंगे। मेच्योरिटी इज डिफरेंट बट नोटीनेस इज इंटेलिजेंट। मैंने नोटीनेस कहा है, मैंने बचकानी हरकत नहीं कहा। बचकानी रास्ते में सड़क पे जाते हुए शूटिंग कर देना, किसी को कुछ बोल देना बुरा भला। अब क्या पता कौन बेचारा किस हालत से जा रहा है, किसके पिताजी का देहांत हो रखा होगा, कोई कोविड पेशेंट होगा। अपने घर में खेलना कूदना, अपने भाई बहन मम्मी पापा के साथ शरारतें करनी, अपने क्लासमेट्स के साथ शरारतें करनी, अपने टीचर के साथ बातें करनी, घुल मिलना, ये नोटीनेस क्वेश्चन का पार्ट है। हमें अच्छे से बचपने को जिंदा रखना है। तो लर्निंग स्किल्स लेने के लिए आपने डिप्लोमा कॉलेज शुरू किया। आपने क्या लर्निंग स्किल्स ली? अगर आप सोच रहे होंगे कि भैया मेरी डिप्लोमा कॉलेज में एडमिशन होगी बीआईटीटी में तो मेरी जिंदगी बन गई, जब मुझे जॉब मिल गई, तो आप गलत सोच रहे हो। कुआं आपको ही खोदना पड़ेगा। आपको टीचर रास्ता दिखा सकते हैं, आपको कॉलेज डिप्लोमा दे सकता है, लेकिन सीखने की इच्छा आपको लेके आनी है। स्किल्स ग्रहण करने के लिए आपको अंदर की शक्ति जो है, इसको हम ज़ील कहते हैं, वी कॉल इट एज एन इनर मोटिवेशन दैट यू हैव टू ब्रिंग इट योरसेल्फ। नोबडी कैन हेल्प यू। इफ यू थिंक दैट समबडी कैन हेल्प यू, आई थिंक यू आर रॉन्ग। यू ओनली कैन हेल्प योरसेल्फ, नोबडी कैन हेल्प यू। हु इज द टीचर? आपने क्या किया? आपने जब भी कॉलेज में पांव रखा, जैसे स्कूल टीचर थे, कॉलेज टीचर को टीचर माना। आज, और मुझे भी यहाँ कहते हो थोड़ा सा दुख और दर्द भी होता है, आजकल टीचर भी टीचर ज्यादा बन गए। अब देश को टीचर से ज्यादा मेंटोर्स की जरूरत है, जो बच्चों की भावनाओं को समझ सके, बच्चों के अंदर वो स्किल्स लाने के लिए उनके साथ उठ बैठ सके। यू टर्न लेना पड़ता है, नहीं तो टीचर अपनी जगह से नीचे नहीं आता। वो कहता है मैं तो ब्लैक बोर्ड के बगल में खड़ा हूँ, जो मैं बोलूँ वही सत्य है, जो मैं कहूँ वही लिखो, वही लिखोगे तो नंबर दूंगा, नहीं तो फेल करूंगा। तो उससे क्या हो रहा है? बच्चा कह रहा है सर आप अभी भी मुझे स्टीम इंजन पढ़ा रहे हैं, लेकिन देश में तो मुझे बुलेट ट्रेन चलानी है। तो बुलेट ट्रेन की बारे में तो आप बात नहीं कर रहे हैं। तो टीचर सोचता है कि भैया वो तो मैं भी नहीं पढ़ के आया, तो तुम्हें कैसे पढ़ा दूं? तो मैं तो वही पढ़ाऊंगा जो पढ़ के आया हूँ। सो यानी कि सबसे बड़ा लर्नर होता है हमारे इस वर्ल्ड में टीचर। टीचर इज द बेस्ट लर्नर। और आपको पता है सबसे बेस्ट टीचर्स कौन से होते हैं? Whenever I go to class, I feel there are 60 teachers sitting in front of me. मेरे सामने मेरे 60 शिक्षक बैठे हैं, जो मुझे रोज नया सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, मुझसे सवाल पूछते हैं, मुझे कुछ नई चीज बताने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मुझे को आप जितनी अच्छी पाइथन नहीं आ सकती। मैंने अगर कार ड्राइविंग सीखी है ना, आप मुझसे ज्यादा अच्छी ड्राइविंग कर लोगे, क्योंकि आप लेटेस्ट गाड़ी चलाने सीखे। आज जितना अच्छा मोबाइल पे आप कार्य कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मोबाइल आपके युग में आया था, मेरे युग में नहीं आया था। इट मींस वी हैव टू गेट अपडेटेड विद योर जर्नी। हमें बच्चों के साथ रह के सीखना है, ना कि बच्चों को ज्यादा सिखाने की कोशिश करनी है। फिर जब हम आपस में चलते हैं, सबका साथ सबका विकास, तो हम सीखने लगते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या लग रहा है, मेरी तो जिंदगी बर्बाद होगी। क्यों? मुझे कंप्यूटर साइंस चाहिए थी, मुझे तो इलेक्ट्रिकल मिली। अरे मेरे पापा ने मैकेनिकल दिलवा दी। अरे मेरा रैंक कम आया था, मैं सिविल में घुस गया। ये क्या है? व्हाट इज दैट? आई टेल यू, ईच एंड एवरी स्ट्रीम इज इक्वली इंपॉर्टेंट। यू नेवर नो when your branch is going to give you the boom. I'll simply ask one question to all of you. कोविड से पहले क्या कभी किसी मैकेनिकल इंजीनियर्स ने ये सोचा था कि हम बायोमेडिकल इक्विपमेंट बनाने लगेंगे? जी हाँ, वेंटिलेटर्स बनाना शुरू किया ना। कितनी ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री ने मारुति की गाड़ियां बनानी छोड़कर, इंजन बनाने छोड़कर वेंटिलेटर बनाना शुरू किया। क्यों? देश को वेंटिलेटर ज्यादा चाहिए थे, गाड़ी नहीं चाहिए थी। ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए थी, ना कि 5 स्टार होटल चाहिए थे। समय के साथ चीजें बदलती हैं, लेकिन अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तो आपका दिन आएगा और आके रहेगा। लेकिन बिना स्किल्स के आप दुनिया भर की डिग्रीज इकट्ठी करके बैठ जाओ, आप नौकरी छोड़ो, आप स्टार्टअप भी नहीं बन पाएंगे, सेल्फ एंटरप्रेन्योर भी नहीं बन पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 4 W हैं, आप ही के हैं, आप ही के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस हैं, आप ही के सामने रख रहा हूं। आपका पहला क्वेश्चन पता क्या होता है? व्हाट करियर आई शुड चूज? क्या मैं पॉलिटिशियन बनूं, स्पोर्ट्समैन बनूं, इंजीनियर बनूं, कि विदेश में ही चला जाऊं? कुछ ना कुछ तो मन में ख्यालात रहते हैं ना। फिर आप पूछते हो सर मुझे स्किल्स कहां से मिलेंगी? आप मुझे सिर्फ डिप्लोमा का एक कागज दे रहे हैं, स्किल्स कौन देगा? वेयर विल फाइंड दी स्किल्स फॉर माई करियर? व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इन योर माइंड?
व्हाई शुड बी एन एंटरप्रेन्योर और एग्जीक्यूटिव? मतलब कि मैं जॉब सीकर बनूं कि जॉब क्रिएटर बनूं? बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूं, सुन लीजिए ध्यान से। आपको डिसाइड करना होगा आज मेरी जॉब क्रिएटर बनना है। सीकर का मतलब ये होगा कि आपका बायोडाटा लेके मार्केट में अपने आप को जाना है, बताना है, बेचना है। सर मेरे अंदर ये प्रतिभा है, आप मुझे नौकरी दीजिए, मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूं। और जॉब क्रिएटर का मतलब पता क्या होगा? आप 10 को बोलोगे आप मेरे साथ मिलके काम कर, मैं भी कमाऊंगा, तू भी साथ में कमाएगा, हम अपना काम करेंगे। सर ऐसे कहीं पॉसिबल है? कौन बैंक हमें लोन दे देगा सर? हम तो डिप्लोमा होल्डर हैं सर, हमें नहीं लोन मिलेगा। हमारे प्रोग्राम को कौन सुनेगा सर? हमारी बात, अरे यही सबसे बड़ा बैरियर है। टीवी पे ऐड आती है ना, डर के आगे जीत। ठीक है, डीओ भी पी लेना, मैंने डीओ पीने के लिए मना नहीं किया है, लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरी बात को पकड़ो। अगर आपको लगता है कि सिर्फ डिग्री करने से, एमटेक करने से ही आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं 10वीं पास एंटरप्रेन्योर भी आज आपको यहां से बता के जाऊंगा, क्योंकि प्रमाणित करना होता है। जो भी चीज कहनी है प्रमाणित नहीं करूंगा ना, तो आप चैट बॉक्स पे क्या लिखेंगे? उल्लू मत बनाएंगे, यही कहते हैं ना, और दिखाओ और दिखाओ। तो ये सारी चीजें आपके साथ चलेंगी। When I would get my break, सर मुझे ब्रेक कब मिलेगा? मैं तो 3 साल से डिप्लोमा करके बैठा हूं या डिग्री करके बैठा हूं, मुझे तो ब्रेक नहीं मिल रहा। ये वो वाला ब्रेक नहीं है भैया कि जब डायरेक्टर तुम्हें साइन करेगा एज ए हीरो। मोस्ट ऑफ द हीरोज और हीरोइंस जो हमारी बॉलीवुड में आए हैं या हॉलीवुड में गए हैं, उन्होंने शुरुआत पहले साइड हीरो हीरोइन से की होगी, असिस्टेंट से की होगी, कैमरामैन से की होगी, मेकअप बॉय से की होगी, वार्ड बॉय से की होगी। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, आपकी कल्पना सोच बड़ी होनी चाहिए, आपका सपना बड़ा होना चाहिए, तो शुरुआत छोटे से होती है। As he was reading my biodata, your training placement officer, he was reading so many things about me. मैंने इतने पेपर पब्लिश कर दिए, मुझे इतने अवार्ड मिल गए। अभी तो उन्होंने बहुत कम पढ़ा है, गूगल पे ज्यादा पढ़ी है। क्या वो एक दिन में हुआ? नहीं हुआ। जब मैंने अपनी बीटेक कंप्लीट की थी, तो मेरी पहली जो जॉब लगी थी वो 1250 रुपए की लगी थी 93 में। 1250। करना क्या था मुझे? EPBX, उस टाइम पे EPBX होता था, इंटरकॉम लगाने वाली मशीन, उसको बेचना था। तो मैंने तो नहीं सोचा कि मैं बीटेक करके आया हूं इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स विद अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन ऑफ साउथ एंड स्टिल आई हैव टू डू दिस काइंड ऑफ मार्केटिंग। नो, एंड विद इन 2 months I got another break. Then next year I got another break, and finally I could reach to the Government of India department. It comes in the way when you start moving. आप मुझे एक चीज बताइए, आप सिर्फ घर में सिर्फ बैठे रहेंगे और कहेंगे कि मैं बॉम्बे पहुंच जाऊं, तो आप बॉम्बे पहुंच जाओगे? ये वर्चुअल का जमाना है, मैं आपके पास आ गया हूं, लेकिन फिजिकली तो नहीं आया हूं ना। अगर मुझे बॉम्बे जाना है तो मुझे सबसे पहले टिकट निकालनी पड़ेगी, मुझे अपना सामान पैक करना पड़ेगा, मुझे रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा, मुझे गाड़ी पकड़नी पड़ेगी, तो ही ना बॉम्बे पहुंचूंगा। इट इज वेरी सिंपल। हु वुड हेल्प यू? आपको मदद कौन करेगा? मैं बताता हूं आपको मदद कौन करेगा। आपको लग रहा है कि डॉक्टर मन्ना आपको मदद करेंगे, मैं भी नहीं करूंगा। आपके टीचर करेंगे, वो भी नहीं करेंगे। आपको अपनी मदद खुद करनी होगी, बशर्त साथ में आपको चाहिए एक करियर कोच। आप हिंदुस्तान में हैं, एज पर इंडियन डाटा, इंडिया नीड्स 2 million करियर कोचेस टू एड्रेस 600 million यूथ करियर। अब ये एक बड़ी समस्या है मेरे देश में। अगर आप स्पोर्ट्स में जाते हैं तो आपको कोच मिल जाता है और आप कहते हैं कि मैंने गोल्ड मेडल लिया बिकॉज ऑफ माय कोच, उसने मुझे अच्छे से ट्रेनिंग कराई। लेकिन हमारे जो बाकी करियर है, यानी कि किसी फैक्ट्री को खोल के बैठना या किसी दुकान पे भी काम करना, आपका कोच कहाँ है? करियर कोच तो नहीं है। और टीचर आजकल रोल मॉडल भी नहीं बन पा रहे हैं। टीचर रोल मॉडल होते तो फिर तो मुझे प्रणाम आता, वेलकम आता, बहुत अच्छी तरफ से आपकी तरफ से। तो आजकल टीचर हम लोग रोल मॉडल भी नहीं बन रहे। रोल मॉडल तो हमारे शाहरुख खान जी हैं आजकल, अमिताभ बच्चन जी हैं, मैं भी उनको पसंद करता हूँ, मैं भी उनका फैन हूँ। लेकिन रोल मॉडल का मतलब ये होता है कि हम किसी की जीवनी को पढ़ के, व्हेन वी स्टडी समबडीज बायोग्राफी, जैसे अब्दुल कलाम जी, आर्यभट्टा जी, हम किसी की बायोग्राफी को पढ़ के थोड़ा सा उन जैसा होने की कोशिश करें, जहां उनके कुछ सिद्धांतों को अपनाने की कोशिश करें। अब उससे क्या होता है, हमारे जीवन में एक डिसिप्लिन आ जाता है। फिलिप्स का छोटा सा ट्रांजिस्टर होता था लाल रंग का, मैं विविध भारती प्रसारण सेवा केंद्र सुनता था, यानी कि गाने सुनता था। रंगोली भी आती थी टीवी पे, वो गाने सुनता था तो मैं मैथ्स कर लेता था। वो जगजीत सिंह की गजलें सुनता था तो मैं साइंस पढ़ लेता था। लोग कहेंगे सर आपकी कंसंट्रेशन कैसे बन जाती थी? मेरा ये मानना है
अगर आपके पास कोई एक भी आर्ट है ना, चाहे वो ड्राइंग है, पेंटिंग है, स्केचिंग है, गार्डनिंग है, कुकिंग है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है, सिंगिंग करना आता है, आई थिंक यू आर अ ग्रेट पर्सन, यू आर अ ग्रेट पर्सन। एक कोई भी प्रतिभा, आपको पता है भगवान श्री कृष्ण के लिए लिखा गया है और ये सत्य भी है कि वह 16 कलाएं समर्थ थे। 16 यानी कि टोटल कितनी कलाएं होती हैं? 16, ये अंकित किया गया है। और आज मैं मानता हूं कि अगर हमें 4 कलाएं भी आ जाए तो देश में हम बड़े सक्सेसफुल माने जाते हैं। 4 कलाएं, तो 16 कलाएं थी हमारे कृष्ण भगवान के साथ, क्योंकि कृष्ण भगवान अच्छे थिंकर भी थे, अच्छे सिंगर भी थे, सब कुछ था ना उनके पास, तो वो तो भगवान थे ना, वो तो संपूर्ण थे। तो ये कलाओं का होना जिंदगी में बहुत अहम होता है। और एक चीज और बताऊं, मैं सत्य बता दूं, भगवान ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, हम सबको कोई ना कोई कला देके धरती पे भेजा। वो कला पैसे कैसे छिप जाती है? गरीबी के कारण छिप जाती है, अनअवेयरनेस के कारण छिप जाती है। गरीब होते हैं ना तो सारा दिन के चक्कर में हम मजदूरी करने लगते हैं, भूल जाते हैं मेरे अंदर कला है। और अब देखा ना आपने टीवी पे, फेसबुक देखते हो, एक बूढ़ा लाचार और हारमोनियम पे क्या सुरे बजा रहा है, और रेलगाड़ी में है वो, बेशक वो पैसे ही मांग रहा है, इज बैगर बट ही इज अ म्यूजिशियन, ही इज अ म्यूजिशियन फर्स्ट देन ही इज अ बैगर। बैगर हुआ इस संसार की अवस्था के कारण, लेकिन भगवान ने तो उसको कोई कमी नहीं देके भेजा था, भगवान ने तो उसको कला देके भेजी थी, लेकिन वो किसी अच्छे हाथ में नहीं जा पाया, किसी डायरेक्टर ने उसको ग्रूम नहीं किया। नहीं तो बहुत सारे, आपने कितने हीरोइंस की इंटरव्यू सुनी, सर मैं कंडक्टर था, सर मैं ढाबे हीरो बन गया, तो कला तो उसके पास थी, लेकिन वो ढाबे पे काम करता था, पापी पेट का सवाल है। अगर उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली जिंदगी में तो अक्षय कुमार भी बन के सामने आ गया, वो शाहरुख सर रजनीकांत, सॉरी सर रजनीकांत बेस्ट ड्राइवर था सर। अरे बाबा, भावनाओं पे जाओ ना यार, शब्दों पे। यस, रजनीकांत की भी स्टोरी ऐसी है। अरे बहुत सारे हैं, रजनीकांत हैं, मिथुन चक्रवर्ती हैं, बहुत सारे हैं हमारे ऐसे बॉलीवुड स्टार्स जिन्हों के पास कला थी, लेकिन पहले गरीबी ने आके ढक रखी थी कला। तो मेरा यहाँ पर जो मैं मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूं, आपके अंदर कोई आर्ट है ना, उस आर्ट को बराबर जिंदा रखो, और जब जब मौका मिलेगा ना, आपको तुरंत वहां पे आप मौके पे चौका मारने वाले। अब आता हूं अगली बात, ये तो होगी थी जो इनर स्किल्स हैं जो भगवान ने हमें देके भेजा है। अब होता है जो स्किल्स हमें इनहांस करनी होती है, कहां पर? डिप्लोमा कॉलेज में जाके, डिग्री कॉलेज में जाके, आईटीआई में जाके आप सोल्डरिंग सीख रहे हो, वेल्डिंग सीख रहे हो, टूल कटिंग सीख रहे हो, डाई कास्टिंग सीख रहे हो, आपको रंदा चलाना आ गया। ये कहां से आ रही है? ये नॉलेज बेस्ड स्किल्स है। ये फ्री हैंड्स टू वर्क विद द फ्री माइंड टू इमेजिन। आप बेशक आज एक लकड़ी को प्लेन करने के लिए रंदा चला रहे हो, उस टाइम पे आपके दिमाग में कुछ और भी आइडिया आ सकता है। हो सकता है आप नए किसी रंदे का आविष्कार कर दो, किसी नई हेक्सा का आविष्कार, कुछ भी दिमाग में आ सकता है, लेकिन लिखना पड़ेगा। थिंक इंक। अभी तीसरा शब्द लिंक है, वो बाद में आता हूं, उसके बारे में बात करते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड जो है हमारी, उसकी 7 की डायमेंशंस होती हैं। आपका एक स्टैंडर्ड करिकुलम है, हाँ डिप्लोमा के स्टैंडर्ड करिकुलम है, लेकिन आप अभी समय पे देख पा रहे हैं मास्क की कितनी जरूरत पड़ गई, सैनिटाइज, सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत पड़ गई है। आपको पता है आपके टाइम फ्रेम क्या है? 3 साल, मुझे 3 साल में डिप्लोमा कर लेना है, मुझे 4 साल में बीटेक कर लेनी है। लेकिन आपको एक डिसीजन भी लेना है साथ में। क्या डिसीजन लेना है? मुझे आगे करना क्या है, वेयर टू गो, व्हाई टू गो, व्हेन टू गो एंड हाउ टू गो। उसके लिए आपको कोलैबोरेशन चाहिए। या तो किसी टीचर के साथ आप मेंटर मेंटी का रिश्ता बना लेंगे, या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट, आपके कोई पड़ोस में आपके कोई रिलेटिव कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, आप उसको बोलेंगे चाहे मुझे छोटा सा कार्य दीजिए, लेकिन मुझे कुछ नया सीखना है, नया सीखना है। आप मुझे असेस भी कीजिए, आप मेरी असेसमेंट करके बताइए क्या मैं सीख रहा हूं सच में, क्या मैं दिल से सीख रहा हूं, और करना वही जिंदगी में जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। प्लीज डू व्हाट यू लव टू डू, बिकॉज until unless you make your passion alive, you cannot be a successful professional. So passion and profession. आपने नोट किया, जब स्वयं बना ना, तो सबसे पहला काम मैंने क्या करवाया स्वयं पर? चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। यानी कि बच्चों को 20% चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम से स्वयं से कोर्स करने दीजिए। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, जिससे आप कोर्स कर सकते हैं और आपको क्रेडिट भी मिलते हैं 20%। आपके डिप्लोमा के 20% क्रेडिट वहां से, ओपन इलेक्टिव जिसको आप बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैंने बीटेक की, मैंने 64 सब्जेक्ट्स पढ़े अपने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के, लेकिन मुझे एक भी सब्जेक्ट म्यूजिक का नहीं मिला पढ़ाने के लिए।
मिल ही नहीं सकता था। अब म्यूजिक कहाँ से कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में सिखाने आएगा, ना ही लैब थी, और मेरे अकेले के लिए टीचर रखेंगे क्या? वो पॉसिबल ही नहीं कहेंगे। वो कहेंगे भाई साहब जाके बीए करो ना, अगर म्यूजिक ही सीखना था इंजीनियरिंग क्यों करने आए। आज नहीं ऐसा कह सकते। आज कंप्यूटर साइंस एंड म्यूजिक, आज ड्रामा एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। जी हाँ, आप स्वयं पर म्यूजिक का कोर्स लेंगे तो भी आपके डिटेल मार्क्स कार्ड में म्यूजिक के नंबर लग के आएंगे। आप कह सकोगे मेरा पैशन एंड प्रोफेशन बोथ आर गोइंग साइमल्टेनियसली। दिस इज व्हाट द फ्रीडम। आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को उठा के पढ़ो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमने क्या क्या नए प्रावधान दिए हैं आने वाले स्टूडेंट्स के लिए। अब मैं आपके सामने क्या रख रहा हूं, एक प्लेटर रख रहा हूं। ये 21st सेंचुरी की सर्वाइवल किट है। आप सोचोगे सर ये ऐसी कौन सी किट है, हम तो सांस ले रहे हैं, बड़े सर्वाइव्ड हैं, खुश हैं, खाना खा के बैठे हैं अभी घर में, रिलैक्स्ड हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको अगले 2-3 डिकेड्स में कुछ करना है, यू वांट्स टू डू समथिंग आने वाले दिनों में, क्योंकि देखिए हम तो 50 प्लस होने वाले बंदे हैं, आपको तो अभी 60 साल रहना है, 80 साल रहना है, भगवान आपको लंबी आयु दे। आपको कुछ ऐसी कोई 3 या 4 स्किल्स पकड़ लेनी चाहिए जिसमें आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग हैंड बना सके। क्रिटिकल थिंकिंग तो एक भगवान की देन है, इसको आप और अच्छे से बना सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिएटिविटी है, कोलैबोरेशन है, कम्युनिकेशन है। सो अनलर्न, रीलर्न एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। आपको डिजाइनिंग अच्छी लगती है, आप डिजाइनिंग कीजिए। आपको मैनेजमेंट अच्छा लगता है, आप मैनेजमेंट का टूल कीजिए। आपको यूट्यूब पे जाके कुछ अपनी वीडियोस बनाने का अच्छा शौक है, आप यूट्यूबर बन जाइए। नो 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 वरीज। आपको वेब डेवलपमेंट करनी है, वेब डेवलपमेंट कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने सिर्फ कंप्यूटर साइंस वालों को टच किया है, जब मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस वालों के लिए आज आया हूं। सॉरी, ये कोई भी ऐसी स्किल नहीं जो सिर्फ कंप्यूटर साइंस वालों को आनी चाहिए। चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करें, चाहे सिविल इंजीनियरिंग करें, फ्लेक्सिबिलिटी आपको भी चाहिए, टेक्नोलॉजी लिटरेसी आपको भी चाहिए, सोशल स्किल्स आपको भी चाहिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स आपको भी यूज करना आना चाहिए। तो ये वो वाली स्किल्स हैं जो हर एक व्यक्ति जो भी इंजीनियरिंग कर रहा है या प्रोफेशनल लॉ LLB कर रहा है, BA कर रहा है, उसको ये स्किल्स में से स्किल्स थोड़ी सी ले लेनी पड़ेगी ताजो उनका आगे निर्वाह अच्छा हो। कहाँ से लेनी है? दिस इज द MOOCs प्लेटफॉर्म। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल्स देते हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी ले सकते हैं। सम प्लेटफॉर्म्स डू चार्ज फॉर द सर्टिफिकेशन लाइक Coursera, Udacity, WinIQ. Then SWAYAM is a free, so you can take it some courses from SWAYAM. Yes, examination fee is there, 1100 rupees. I do understand, and it's still refundable. So Canvas hai. These are the different MOOCs platform. I tell you one more thing. In the MOOCs platform, if you don't want to give exams and simply you want to learn the skills and course, it's a free of cost. No charges. Charges comes when you want the certification. And if you want the certification in your life to produce somewhere in your company, then you can have certification. Otherwise, there is no need for certification. हमारे देश में 15,470 स्टार्टअप्स रिकॉग्नाइज्ड हुए। कितने दिनों में? पिछले 4 साल में स्टार्टअप की बात शुरू हुई ना हमारे देश में। पहले स्टार्टअप वर्ड कहां होता था? ओवर 1,48,897 स्टार्टअप जॉब्स क्रिएटेड बाय, आप नोट कीजिए, 13,000 बच्चों ने, 13,176 बच्चों ने 1,48,000 बच्चों के लिए नौकरियां क्रिएट कर दी। बच्चों ने ही बच्चों के लिए, अपने क्लासमेट्स के लिए जॉब्स क्रिएट कर दी। जस्ट इमेजिन। फंडिंग कहां से आ रही है? अब हमारे पास फंडिंग के बहुत प्रावधान हो चुके हैं। सीरीज फंडिंग, क्राउड फंडिंग, लोन्स, वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर्स। ऐसे ऐसे एंजल इन्वेस्टर्स हैं कि 50,000 रुपए देके भूल जाएंगे, आपसे पैसा वापस नहीं मांगने आएंगे, भले आप सक्सेसफुल हो पाए। अगर आपका कोई आइडिया नहीं ठीक चला तो कहेंगे कोई बात नहीं बेटा, फिर क्या हो गया। घर में क्या करते थे? पापा ने एक कार लेके आए, हम कार को खोल के बैठ के, दोबारा कार नहीं बना पाए तो पापा ने क्या घर से निकाल दिया? पापा ने, बेटा कोई बात नहीं, तुमने सीखा ना कार कैसे खुलती है, दोबारा नहीं जोड़ पाए, स्क्रू नहीं कस पाए, कोई बात नहीं बेटा, पापा नई गाड़ी ला के देंगे। तो अगर पिता ऐसे कर सकते हैं तो हमारे देश के बहुत सारे बैंकर्स, बहुत सारे ऐसे NGOs, बहुत सारी इंडस्ट्रीज CSR से बच्चों को फंड कर रही हैं। थोड़ा सा गूगल पे पढ़ना पड़ेगा, ब्राउजिंग करने। और मैं फिर कह दूं, ये सिर्फ ग्रेजुएट्स के लिए नहीं है, अंडर ग्रेजुएट्स भी है, मैट्रिक पास भी स्टार्टअप बन सकता है। आपको पता है यंगेस्ट स्टार्टअप ऑफ माई कंट्री, हमारे देश का सबसे यंगेस्ट स्टार्टअप पता है कितनी आयु का है? गूगल पे लिखिएगा यंगेस्ट स्टार्टअप ऑफ कंट्री, और जिसको मोदी जी ने खुद स्टेज पर अवार्ड दिया था। जी हाँ, 5 साल का बच्चा, मेरे ख्याल उसका नाम था, फिर कहोगे सर नाम गलती है, शशांक था जहां तक मेरा ख्याल है। आप गूगल आउट कर लीजिए, पता चल जाएगा आपको, क्योंकि गूगल पे जानकारी सही डाली जाती है, कई बार गलत भी डाली जाती है, तकरीबन सही होती है।
ये योजनाएं हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, आप सबके लिए जो यंगेस्ट, हमारे लिए नहीं है, स्टार्टअप मींस यंग बच्चा, शिशु 50,000 स्टार्टअप इनिशियल स्टेज, किशोर 50,000 से 5 लाख विद सम एक्सपेंशन, तरुण 5 लाख से 10 लाख रुपया अगर उसने आगे कंपनी को बड़ा करना है तो ये सपोर्ट मिलती है। और पहले 3 साल तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, आप जो कमाएंगे पूरा आपका, 80% आपको पेटेंट पे भी रिबेट, यानी कि पेटेंट पे अगर 50,000 का खर्चा होता है आपकी जेब में से, उसमें से सिर्फ कितना लगेगा, ठीक है, 8,000 मात्र लगेगा, बाकी गवर्नमेंट की तरफ से पे किया जाएगा, रिबेट किया जाएगा आपको, क्योंकि स्टार्टअप है। आपको तैयार होना पड़ेगा एक नई जर्नी के लिए। क्यों? आज से पहले क्या होता था, एक दफ्तर में जाते थे, एलडीसी, यूडीसी, असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, देन बाबू, बाबू कहते थे ना, मैनेजर, बाबू। अब नहीं है, अब आप किसी भी ऑफिस में जाएंगे, सिंगल विंडो, वही आदमी आपको चाय कॉफी ऑफर कर रहा है, वही आपकी एफडी बना देगा, वही आपकी पासबुक अपडेट कर देगा, वही आपका डिमांड ड्राफ्ट भी तैयार कर देगा, वही आपकी कंप्लेंट भी सुन लेगा। तो क्या चाहिए? एग्जीक्यूटिव्स चाहिए। आज ज्यादा जरूरत है मल्टी ऑप्शन पर्संस, मल्टी स्किल्स पर्संस की, यानी कि कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, मैनुअल वर्क, फैक्ट्री वर्कर, ये सब जो है ना, रोल्स गेटिंग रैपिडली डिसरप्टेड। सो ये आपको, आपने आपसे पहले कभी देखा था कि आपके घर में कोई आपके लिए गरम गरम खाना लेके आता था, जोमेटो का, स्विगी का? 6 साल पहले तो नहीं होता था, 10 साल पहले तो नहीं होता था। आपके लिए बाहर आके गाड़ी खड़ी हो जाती है, चलिए साहब आपको छोड़ना है, क्योंकि आपने ओला बुक करवाई है, खुद की आपने गाड़ी नहीं परचेज की, लेकिन आप घूम सकते हैं। ये सर्विसेज कहां से आई? ये सर्विसेज आ रही हैं क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और आईटी के कारण। ऑटोमेशन का ये कहना है 9% of the companies have implemented artificial intelligence solutions in their businesses and are reaping productivity. तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा, जब कंपनीज ऑटोमेशन कर रही हैं तो आपको भी ऑटोमेटेड टूल्स सीख लेने पड़ेंगे ड्यूरिंग योर डिप्लोमा, भले आपके सिलेबस में है या नहीं है, लेकिन आपको तो सीखने पड़ेंगे। पता चला कि आपका सिलेबस 5 साल से रिवाइज नहीं किया गया, तो अब क्या लड़ाई करोगे? कोई फायदा नहीं होगा लड़ाई करके, कोई फायदा नहीं। उससे अच्छा अपना टाइम यूटिलाइज करके स्किल्स खुद से एनहांस कर लो, थ्रू ऑनलाइन, थ्रू योर टीचर। बहुत सारे आपके टीचर ऐसे होते हैं जो खुद भी स्किल्स ले रहे होते हैं, तो वो आपको भी साथ में दे सकते हैं। आप नए टूल्स, पाइथन, आईओटी, ब्लॉकचेन, ऐसी चीजें आप स्किल्स लेके जाएंगे मार्केट में, अदर देन योर डिप्लोमा और डिग्री, यू विल बी वेरी सक्सेसफुल। हैंड्स आर द सेम। मार्केट में नौकरियां बिल्कुल कम नहीं हुई। किसने कहा कि नौकरियां उल्टा इतनी बढ़ गई हैं, हमारे पास स्किल्ड पर्संस नहीं है। इट्स अ हार्ड वर्क टू स्मार्ट वर्क, ओनली द रोल्स आर चेंज्ड, jobs are there. So emerging technologies for the next decade, आपको ब्लॉकचेन चाहिए, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स चाहिए, ट्रैफिक मॉनिटरिंग जॉब्स आ गई हैं, डाटा एवरीवेयर देयर इज अ डाटा, बिग डाटा, डाटा साइंस, डाटा एनालिटिक्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, कितनी जरूरत है हमारे देश को। देश ने अब तक 350 सैटेलाइट्स लॉन्च कर दी हैं, आपको पता है? पहली जब हमने लॉन्च की थी 1977 में, तब किसने सोचा था कि हमारे इसरो इतनी सैटेलाइट्स, 340 सैटेलाइट्स लॉन्च हो चुकी है। सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे तो स्पेस टेक्नोलॉजी भी तो बढ़ रही है ना। सो कैच द वेव एंड टू ट्यून विद द टेक्नोलॉजीज। स्टेम से स्टीम की तरफ गए, हमने आर्ट्स को किया, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। अब मैं कह रहा हूँ स्टीम से हम स्ट्रीम की तरफ जा रहे हैं, हमें रिसर्च भी लानी पड़ेगी, STERA, मतलब हमें आर भी लाना पड़ेगा, यानी कि रिसर्च भी लानी पड़ेगी। आप क्या बन सकते हैं? आप सेल्फ एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, डिजिटल एंटरप्रेन्योर। आज डिजिटल मार्केटिंग, इतनी बड़ी मार्केटिंग होगी हमारे देश की, इतना बिजनेस जो आज अमेज़न कर रहा है, फ्लिपकार्ट कर रहा है, जोमेटो कर रहा है, ओला उबर कर रहा है, ये सब क्यों कर रहे हैं? डिजिटल मार्केटिंग के कारण। एग्रो एंटरप्रेन्योरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन, LMS सिस्टम बन रहे हैं, ERP बन रही है, मूक्स बन रहे हैं, सोशल मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल एंटरप्रेन्योरशिप, हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योरशिप। तो ऐसे बहुत सारे जॉब्स के रोल्स हैं नए जमाने के, फॉर द न्यू टुमारो। You can choose and you can become entrepreneur. आप किसी के लिए नौकरी करें अच्छी बात है, लेकिन आप खुद के लिए काम करेंगे और अच्छी बात होगी। पैशन चाहिए, पैशन लाना पड़ेगा। पैशन के साथ साथ आपको और भी आगे कुछ करना पड़ेगा। वो क्या है? हमें पैशन के साथ साथ
रिजल्ट्स क्या होते हैं? कुछ ऑब्स्टेकल्स आती हैं, आप जल्दी विचलित हो जाते हैं। पापा ये तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, पापा ये खटाना हो गया, ऑब्स्टेकल्स तो है, इम्पेशेंट। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर साउंड किसी का आ रहा है, सबीर शायद है। हेलो हेलो स्टूडेंट, प्लीज मेंटेन साइलेंस। मेरा साउंड आ रहा है आपको? यस सर, वॉइस इज कमिंग। कई बार बेटा आपके नेटवर्क का कई बार इशू होता है ना, पैकेट्स लॉस होता है, तो तब साउंड चला जाता है, कोई बात नहीं। रिसोर्सफुलनेस, आपको याद रखिएगा, आप 60 की क्लास में आपके 60 बच्चों ने आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा होगा, आपस में आपकी दोस्ती हो रखी है, कल आपको पता ही नहीं कब। हेलो स्टूडेंट, प्लीज मेंटेन साइलेंस। अगर बोर हो रहे हैं तो मैं बंद कर सकता हूँ, मैं बंद कर सकता हूँ सेशन, कोई ऐसी बात नहीं है। थैंक यू। Resourcefulness does mean that each and every person, human being, is resourceful. You never know where he is. अब आज आपकी और मेरी देखिए ये बात हो रही है, कल कहीं किसी कॉलेज में आपने कहीं इंटरव्यू देने के लिए आ गए, और मैं तो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जाता हूँ एज एक्सपर्ट। आप पता क्या बोलो, सर मैंने आपका एक सेशन अटेंड किया था, मुझे इतनी ही बिलोंगिंग। अच्छा तुमने, सर आपने ना उसमें ये चीज बहुत अच्छी सिखाई थी। अगर आपने सुनी होगी तभी ना बोलोगे, और आप बोलोगे पता क्या होगा, मेरे पास 5 होंगे सिलेक्शन करने के लिए, लेकिन मेरा थोड़ा सा ना आपके 2 नंबर एक्स्ट्रा देने को मन करेगा। अरे इसने मुझे सुना हुआ है, ये मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है, ये तो उसी पॉलिटेक्निक कॉलेज से है, BITT से है, जहां पे मैंने सेशन दिया था, भला कि वर्चुअली दिया था। क्या होता है, यू नेवर नो कब किस मोड पे हम कहाँ मिल जाए। अभी मेरे स्टूडेंट्स, अभी इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, 27 साल से, बहुत जगह पे ऐसे होता है, मैं एयरपोर्ट से उतरता हूँ या किसी होटल में जाता हूँ, बच्चे आगे आके पाँव हाथ लगाते हैं, सर आपने नहीं पहचाना, क्योंकि हम नहीं पहचान सकते ना, बड़े हो जाते हो तो हमारे तो चेहरे वही रह जाएंगे ना, हम तो जैसे जाकर दाढ़ी सफेद हो जाएगी और क्या होगा, तो वो पहचान लेते। तो इतनी फीलिंग्स ही आती है, एक बिलोंगिंगनेस ही, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। रिसोर्सफुलनेस होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन माइंडनेस, मैंने आते ही क्या बोला आपके ऑर्गेनाइजर्स को, चैट बॉक्स ओपन कर दीजिए, लिखने दीजिए जो बच्चे लिख रहे हैं। ओपन माइंडनेस, मैं भी जानना चाहता हूँ ये कहां तक जा सकते हैं। सर एक मिनट सर, इसी आगे मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दिया था, जिसके वजह से मेरे को निकाल दिया गया। अभी आप तो बोल रहे हैं कि चैट सेक्शन में जो लिखना है लिखने दो, बट मेरे को तो निकाल दिया गया। अरे हेलो माय स्टूडेंट, प्लीज मेंटेन साइलेंस। बेटा हैव अ पेशेंस, आपको निकाल दिया गया था, वापस आ गए ना, बीच में हो तभी बात रख पा रहे हो ना, अपनी बात तो तभी रख पा रहे हो ना, आपको बात रखने का भी तो मौका मिला। तो ओपन माइंडेडनेस जो है, आप एक चीज और मैं बता दूं, आप अपनी माइंड को या अपनी नेचर को अपने टीचर के प्रति या पेरेंट्स के प्रति नहीं बना सकते। आपका खुद का एक माइंड डेवलप हो रहा है, आप अपने आप एक इंडिविजुअल हो, आप कंप्लीट भगवान की बनाए हुए, आप एक इंडिविजुअल, एक बच्चे हो। आप ही को कल अपने जीवन की रूपरेखा बनानी है, कल आपकी फैमिली बनेगी, आपका परिवार बनेगा, सब कुछ। तो ओपन माइंडेडनेस का मतलब ये होता है कि दूसरों की बातों को स्वीकार भी करना, परंतु हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कभी भी किसी को मंदा ना बोले, क्योंकि सबसे तीखा जो बाण होता है वो शब्दों का बाण होता है, चाहे वो लिखने के रूप से होता है चाहे बोलने के रूप से होता है। हम ऐसा कुछ भी कटाक्ष ना करें, किसी को भी ऐसे शब्द जाने जाने में ना कह के किसी का दिल दुखा दे, क्योंकि हिडन ब्लेसिंग्स भी होती हैं, तो हिडन आपको पता है श्राप भी मिलते हैं। तो हम क्यों लें, ब्लेसिंग्स लेने का कोशिश करें तो श्राप ना लें। तो ओपन माइंडेडनेस का मतलब ये होता है कि हम सबको सम्मान दें और अपने आप को ग्रीन कल्चर में रखें, एक ओपन माइंडेडनेस में रखें, कि नहीं तो मामा हमारे टाइम पे अब ये हो गया, हमें तो नौकरियां नहीं मिलेंगी, कोविड आ गया, देखो सबको नौकरी से निकाल दिया, ये क्या हो रहा है। ये आपको डिस्ट्रक्टिव कर रहा है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन ला रहा है, आपको लो फील करवा रहा है। और आपको क्या लगता है कि दुनिया ऐसे खत्म हो जाती है? क्या ये पहली बार कोई बीमारी आई है, या ये आखिरी बार है, आगे नहीं आएगी फ्यूचर में? गलत सोच रहे हो आप। ये बात अलग है कि एक सदी के बाद हम लोगों ने देखी, मींस आपने भी देखी, हमने भी देखी, चलो 100 साल पहले आई थी, हो सकता है 50 साल बाद आए। अभी भी आप नोट करो, पिछले 10 साल 15 सालों में आंकड़े उठा के देखो, किस देश में बाढ़ नहीं आई, जहां कहीं पर भूचाल नहीं आया, क्या वहां पे लोगों को उनके घर नहीं उजड़ गए, पूरे घर नहीं उजड़ गए, क्या लोगों ने जीना छोड़ दिया? तो ओपन माइंडनेस का मतलब ये होता है कि हमें अपना टेम्परामेंट इंपॉर्टेंट रखना है, इतना जिंदा रखना है, जिंदा दिली से जीना है, क्योंकि अगले क्षण का पता ही नहीं है हमें हमारे साथ क्या होने वाला है। लेकिन हम प्रेजेंट में जीना ही नहीं सीखा। पता क्या करते हैं, पास्ट को सोच के रोते रहते हैं। क्यों? हाय हम कितने गरीब थे तो भी रोते हैं,
हाय Sir, Japan is the best example. सॉरी को क्या Sir, जापान Japan is the best. सबसे क्या है वो? यस, आप जापान की बात कर रहे हो कि साउथ कोरिया, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। साउथ कोरिया की हालत हमारे से भी बदतर थी जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई थी। उनका भी उस टाइम के आंकड़े देखो गूगल पे, और आज उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर देखो साउथ कोरिया की, आपकी आंखें खुली रह जाएगी। गूगल पे आप देखेंगे साउथ कोरिया के कैसे ब्रिजेस बने हुए हैं, कितनी अच्छी उनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, हेल्थ केयर सिस्टम है। उन्होंने क्या किया, जिंदगी वहां पे पानी नहीं होता था पीने का। 1947-50 में पानी नहीं होता था पीने का, बूंद बूंद के लिए तरसते थे, और आज उनके पास कितना राज्य बन गया। क्यों? क्योंकि लोगों ने नेशनलिज्म नहीं छोड़ा और जिंदा दिली नहीं छोड़ी। हमें अपने देश के प्रति प्यार, अपने जीवन के प्रति प्यार, अपनी संस्कृति के प्रति प्यार नहीं कम करना चाहिए। आप तो अभी तक कुछ भी हो, पता क्या होता है, मैंने देख लीजिए, हम तो भूखे मर रहे हैं, हमें तो कोई पूछता नहीं। भाई साहब, भूखे मर रहे हो, आपके पिछले जन्म के कर्म होंगे, उसका देश में पार्ट नहीं है। आप अपने कर्मों को बदल भी सकते हो, आप कम से कम पॉजिटिव रह सकते हो। और मैंने देखा है बहुत सारे बैगर्स भी 15 अगस्त को वो झंडा ही बेच रहे होते हैं, झंडा ही बेचते हैं 26 जनवरी को सड़कों पे, होते बैगर्स हैं, लेकिन देश का झंडा बेचते हैं। वो किसी गाड़ी के लगता है आगे, किसी घर की शोभा बनाता है देश का तिरंगा। तो मैं उन बैगर्स को 10 मांगते मैं 20 देता हूँ। क्यों? तुमने 2 काम किए, एक तो मेरे अंदर मेरी नेशनलिज्म को जिंदा रखा, मैं तिरंगा ले पा रहा हूँ तुम्हारे हाथ से, और एक तुम अपने पेट के लिए ये कार्य कर रहे हो, तो मैं उसको भी सल्यूट करता हूं। तो मैं एक पिज्जा कम खा लूंगा तो क्या फर्क पड़ता महीने में, मैं तुम्हें 10 की जगह 20 दे दूंगा। 10 तो इस झंडे की कमाई के हो गए, 10 तेरे को सल्यूट है कि तू देश के झंडे को ऊंचा रख रहा है। ऊंचा तिरंगा है हमारे देश में। स्पॉन्जी लाइक नेचर, मतलब स्पॉन्जी लाइक नेचर ऐसी होती है, अगर आपको लगता है कि आप लिमिट से बाहर जा रहे हो तो डॉक्टर मन्ना सॉफ्ट रहेंगे, नहीं, मुझे थोड़ा सा कड़क भी होना पड़ेगा। थोड़ा सा स्पॉन्जी लाइक नेचर होता है, हालात के साथ थोड़ा सा हमें अपने आप को नरम भी होना पड़ेगा, थोड़ा सा दूसरी भी होना पड़ेगा, थोड़ा सा पकड़ के भी होना पड़ेगा। डिपेंड्स ऑन दैट व्हाट आर द सिचुएशंस। यू हैव टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक बट फ्लेक्सिबल एंड चैलेंजेस तो आपको हमेशा रहेंगे। कैश का चैलेंज, हायरिंग एम्प्लॉइज, टाइम मैनेजमेंट, डेलीगेटिंग, चूजिंग व्हाट टू सेल, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कैपिटल, दिस एंड चैलेंजेस आपको रहेंगे। चैलेंजेस के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। अब मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ, ये स्लाइड को बहुत ध्यान से देखो। लेफ्ट हैंड साइड पे मैं दिखा रहा हूँ जिनके नाम आपने बहुत अच्छे से सुने हुए हैं, जाने हुए हैं, पहचाने हुए हैं, इनके ऊपर किताबें भी लिखी हुई हैं। चाहे शिव नाडर जी की बात करिए, चाहे आप अजीम प्रेम जी की बात करिए, धीरू भाई अंबानी जी की बात करिए, ये कौन है? सब ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स। लेकिन आपको नहीं पता होगा कि इन्होंने शुरुआत कैसे की थी। इन सब ने स्क्रैच से शुरू किया होगा, जीरो से शुरू किया होगा, आज आप इनकी तरक्की देख पा रहे हैं। अब आप राइट हैंड साइड पे देखिए कौन है, ये नाम कभी सुने हैं? आपको एक नाम पे भी शंका हो, गूगल पे डाल के देख लेना, जो बोलूंगा इनके बारे में सत्य बोलूंगा। ये सब यंग एंटरप्रेन्योर्स है मेरी कंट्री के, 25 साल के, 26 साल के, 27 साल के, जब इन्होंने एंटरप्रेन्योर बने। और इनमें से कोई, आप अक्षय रुपेला को जानते हैं? इंडियन हु बिकम द यंगेस्ट मिलियनेयर इन द यूके। ही स्टार्टेड एज ड्रॉप्स.uk, एंटरप्रेन्योर बन के आया। 12 मिलियन पाउंड का वैल्यूएशन है इसकी कंपनी का। कविता शुक्ला, फाउंडर ऑफ द फ्रेश पेपर्स, शी इनोवेटेड एन आइडिया टू कीप द न्यूमरस प्रोडक्ट्स इन ए पेपर। आप सबवे में वो खाते हो ना लॉफ वगैरह, वो किस पेपर में वो क्या आता है, ये पेपर की खोज कविता ने की, और वो पेपर आया जो खाने के साथ रखा जा सकता है। तिलक मेहता, वन ऑफ द यंगेस्ट ऑफ द लॉट, हैज मेड अ ओला एंड उबर फॉर ढाबा वाला से ना बॉम्बे में, उनके लिए ओला उबर लॉन्च किया। सर रितेश अग्रवाल, सॉरी मेरी आवाज रितेश अग्रवाल। Hello. Student, please maintain silence. If you are having any question, अगर आपको कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जवाब देंगे। तो आप बीच में ना डिस्टर्ब करें सर जब दे रहे हैं। Yes sir, please continue. Trishneet Arora, a school dropout, a huge success in life, self-made man. Trishneet Arora is complete package, launching the company TAC. ये क्या कर रहे हैं? ये रिलायंस जैसी कंपनी को लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं। इसने अब कंपनी बनाई, इसके रिलायंस जैसे क्लाइंट्स हैं। क्या देता है ये? सिक्योरिटी सॉल्यूशंस देता है। यानी कि आपको कोई सीसीटीवी कैमरास लगाने हैं, जो आपको सिक्योरिटी सॉल्यूशंस चाहिए, तो खुद तो स्कूल ड्रॉप आउट है, लेकिन बन गया कितना बड़ा एंटरप्रेन्योर। माइंड आइडिया। श्री लक्ष्मी सुरेश, एनरोल्ड वेबसाइट डिजाइनर, सिंगल हैंडेड 50 वेबसाइट बनाई हैं एक साल में, और ये यंगेस्ट वेब डिजाइनर का अवार्ड भी लेके आई है। देख क्या उम्र रही है, 22 साल। अंशुमन सिन्हा, कॉल्ड यंगेस्ट टैलेंट मैनेजर एट द एज ऑफ 25, ही रन्स द रिप्रेजेंट। एक इन्होंने मल्टी जीनियर टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी बनाई है, और अंडर 40 का अवार्ड भी मिला।